Hello students, how are you? Hope you are all fine at home. Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi, PGT English. From today onwards, we'll start our April month syllabus. According to that, you have to read today the poem The Lake Castle of Innisfree by William Butler Yeats, W.B. Yeats. Okay, open your book, Behind English Literature, and open your poem number 4, The Lake Castle of Innisfree by William Butler Yeats. If we talk about the poet, he is the greatest poetical figure of the first half of the 20th century. Clear? First half of this 20th century, he was the greatest political figure. Okay, and he wrote some romantic and philosophical poems. And if we talk about the central idea of this poem, theme of this poem, then this in this poem, William Butler Yeats has presented about the importance of peace. Okay, he has presented the importance of peace. Actually, he wants to escape from the city life, from the hustle bustle of the city life, from the busy life, from the city's busy life. He wants to escape from this. He wants relaxation, he wants peace. Okay, where he has spent and according to that, he wants to go to the place that's name is the Lake Isle of Innisfree. Okay, he wants to go to this place where he has spent his childhood days. Okay, here in this poem he presents the importance of peace. Okay, and he also says that to find peace one should go to close to the nature. One should go to the close to the nature. Okay, and far from the city life, far from the hustle and bustle of the city life. Okay, in the same way the poet has done this. Okay, he has visited this kind of place in his childhood that is he is missing now. Okay, in this way he has presented in this poem. आप देखेंगे कि इस पोएम के माध्यम से जो पोएट है W.B. येट्स ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि वो जो है सिटी लाइफ से बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुके हैं, सिटी लाइफ से दूर जाना चाहते हैं. एक्चुअली ही वांट्स टू स्केप फ्रॉम द हस्टल बस्टल, फ्रॉम द बिजी लाइफ ऑफ द सिटी. वह बिजी व्यस्त जीवन से, सिटी की जो बिजी लाइफ है उससे वो बचना चाहते हैं. इसलिए वो जो है एक ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ पर उनको शांति मिले, जहाँ पर उनको ट्रैंक्विलिटी मिले, रिलैक्सेशन मिले, और इसलिए वो ऐसी जगह पर जाने की डिज़ायर जो है इस पोएम में आपको शो करते हैं. क्लियर क्लास? इस पोएम में आप इस बारे में देखेंगे. अगर हम बात करें समरी की, इफ वी टॉक अबाउट द समरी ऑफ दिस पोएम, देन इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट he wants to stand up, he wants to go right now. Okay, to go, he wants to go right now to Innisfree. Okay, and there he wants to make a cabin. He wants to grow 9 rows of beans there, and he wants to have there a be loud glad where he can spend his life with peace. Okay, वो तुरंत उठ करके वहां जाना चाहता है और अपना जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से उस जगह पर बिताना चाहता है. ठीक है, और वहां पर वो चाहता है कि उसके पास जो है एक छोटा सा कैबिन हो, जो कि वो घास वगैरह से, घास फूस से बनाए, और जो है वो वहाँ चाहता है कि उसके पास 9 जो है रोज हो, बीन्स फली की, जो आपके वेजिटेबल का पार्ट होते हैं, फली. ठीक है, उसका जो है वेजिटेबल है ये. ठीक है, बीन्स. तो वो चाहता है कि वो जो है वहाँ पर उसके पास उसकी 9 रोज हो, और एक जो है उसके पास बी हाइव हो, जिसको वो जो है अकेले में जो उसका साउंड होता है बी लाउड का, ठीक है, जो बी की जो आवाज़ होती है वो उसको बजिंग साउंड जो है उसको वो इंजॉय करे वो वहाँ पर अकेले में. ठीक है, तो इस तरीके से वो पोएट जो है शांति को इंजॉय करना चाहता है, पीस को, ट्रैंक्विलिटी को, ही वांट्स टू इंजॉय देयर. क्लियर? एंड देन ही ऑल्सो सेज दैट कि वहां पर जब मॉर्निंग होगी, ड्यूरिंग द मॉर्निंग, व्हेन इट इज मॉर्निंग, देन द पीस कम्स वेरी स्लोली फ्रॉम द हेवन. ओके, इट कम्स विद द मॉर्निंग. ओके, एंड इट कम्स टू हिम. उसके पास शांति जो है धीरे धीरे आएगी, और वो उस चीज को बहुत ही अच्छा महसूस करेगा, और उस शांति से वो बहुत ही अच्छा महसूस करेगा जब उसके ऊपर वो जो है मॉर्निंग के साथ साथ शांति की शुरुआत होगी उसकी लाइफ में. फिर ये कहते हैं कि जो है और जो मिड नाइट होगी वो भी बहुत ही शानदार होगी. मिड नाइट जो है ग्लिमर होगी, चमकदार होगी, जो आपके जो है मिड नाइट जो है वो उस चीज़ को भी इंजॉय करेगा वहाँ पर. फिर इसके बाद जो नून होगी वो पर्पल ग्लो होगी. ठीक है, जो दोपहर होगी, जो नून होगी, वह जो है ड्यू टू सनलाइट इट विल बी पर्पल ग्लो. ओके, इट गिव्स अ पर्पल ग्लो शेड. क्लियर क्लास?
एंड देन एन इवनिंग फुल ऑफ लिनेट. लिनेट इज अ बर्ड. ओके, तो लिनेट विंग से जो है इवनिंग फुल होगी, यानी कि चारों तरफ जो है ना लिनेट विंग्स होंगे, लिनेट होंगी, लिनेट बर्ड. तो उनकी जो विंग्स होंगी उससे शाम भी बहुत ही ज्यादा सुंदर होगी. तो वो शाम को द पोएट वांट्स टू एंजॉय एक्चुअली every moment there. Okay, in the morning he wants to enjoy, in the noon, in the midnight, okay, in the evening he wants to enjoy every moment there. और पोएट जो है इस चीज को इस पोएम के माध्यम से प्रेजेंट कर रहा है. और फिर उसके अंदर जो है हम देखेंगे लास्ट स्टेंज में कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इंटेंस डिजायर है. ही हैज intense desire to go to Innisfree and he says that I want to go right now. Actually the poet wants to go right now there. Okay, and he wants to enjoy there. He is on the roadway, he is on the pavement, okay, in the city, and from there he can hear the sound of lake water lapping. okay, वहां रोडवे पे खड़ा है, वो सिटी में रोडवे पे है, ठीक है, और वहां से वो लेक वाटर की आवाज को सुन सकता है और उसको महसूस कर सकता है. एक्चुअली ही इज मिसिंग द प्लेस ऑफ हिज बॉयहुड, ऑफ हिज चाइल्डहुड. जो है बॉयहुड का, अपने चाइल्डहुड का जो प्लेस है उसको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है. तो वो वहां जाना चाहता है, उसके अंदर इंटेंस डिजायर है, स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि वो अभी तुरंत चला जाए. तो पोएट लास्ट स्टेंज में ये एक्सप्रेस करता है कि आई मीन्स कि वो तुरंत अभी वहां जाना चाहता है, वो उसकी साउंड को अभी सुन सकता है, महसूस कर सकता है और वहां पर वो जा करके उस चीज को इंजॉय करना चाहता है. ठीक है, और पेवमेंट जो है वो ग्रे है, पेवमेंट ग्रे है. इट शोज दैट the city life is full of pollution, that is polluted. okay, full of pollution है और वो वहां से निकलना चाहता है, स्किप करना चाहता है और वो इनसफ्री जैसी जगह पर जाना चाहता है, शांति की वो इच्छा रखता है. क्लियर क्लास? दिस इज द समरी एंड ही कैन हियर इट फ्रॉम हिज हार्ट स्कोर. ठीक है, अपने हृदय की गहराइयों से लेक वाटर लैपिंग की आवाज, समुद्र तट से पानी के टकराने की आवाज वो सुन सकता है, जबकि वो रोड पे है. पेवमेंट, पेवमेंट एक थोड़ा सा ऊंचा सा स्टैंड है सॉरी, तो वो वहां पर है. क्लियर क्लास? ओके, नाउ विल स्टार्ट अवर पोएम स्टैंजा 1. I think summary and central idea is clear. You have to write down your summary and central idea. Central idea is known as theme also. Okay, first of all you have to write central idea or theme, and then summary, and then tough words, and then question answer, NCERT question answer. Okay, okay class, now we'll start our poem. I will arise and go now and go to Innisfree. The poet has a strong desire to go to Innisfree. He says that I will arise and go now and go to Innisfree. वह अभी जाना चाहता है और Innisfree जाना चाहता है. ठीक है, और कह रहा है कि मैं अभी तुरंत जाऊंगा. Innisfree is a place, okay, full of peace, and it is a place which reminds his childhood memories. Okay class, तो ये एक ऐसी जगह है जो कि उसको उसके बचपन की याद दिलाती है. बचपन में ऐसी जगह पर वो विजिट किया हुआ है, तो पोएट ऐसी जगह पर जाना चाहता है. फिर ये कह रहे हैं ओके क्लास, फिर इसके बाद ये कहते हैं कि एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड बॉटल्स में. poet has desire to make a small cabin there. Actually he wants to go there and then he wants to do some things, he wants to do some task there. One of them is to build a cabin there. वह वहां पर एक छोटा सा कैबिन बनाना चाहता है of clay and bottles made. जो कि क्ले मीन्स क्या होता है आपका मड. ठीक है, जो कि क्ले से, और वॉटल्स मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ रॉड, ओके, इंटरलेस्ड विद ट्विंग्स एंड ब्रांचेस. रॉड है, ब्रांचेस है, ट्विंग्स हैं, ठीक है ना, इस तरह के मटेरियल से वो वहां पर एक कैबिन बनाना चाहता है. एंड द पोएट वांट्स टू मेक अ कैबिन ऑफ क्ले एंड बॉटल्स मेड देयर वेयर इन Innisfree. ओके, फिर उसके बाद 9 बीन रोज विल आई हैव देयर. पोएट कह रहा है कि उसके पास 9 क्यारियां होंगी. किसकी होंगी? बीन्स की होंगी. ठीक है, बीन्स की वो 9 क्यारियां वहां पर अपने लिए अरेंज करेगा, अपने लिए व्यवस्थित करेगा, अपने लिए वहां पर 9 क्यारियां भी बनाएगा. किसकी? बीन्स की. क्लियर? वहां पर सरवाइव करने के लिए उसे कुछ चाहिए, तो वो वहां पर ये सब काम करेगा. क्लियर क्लास? किसका किसका? 9 बीन्स रोज विल आई हैव देयर, कि वहां पर वो जो है 9 बीन्स रोज जो है बनाएगा अपना. ठीक है, वहां पर उस चीज को वो लगाएगा 9 बीन रोज को. क्लियर? और फिर उसके बाद अ हाइव फॉर द हनी बी.
और वहां पर वो अपने लिए हनी बी, जो मधुमक्खी होती है, ठीक है, हनी बी, उसके लिए एक हाइव की भी अरेंजमेंट करेगा, एक हाइव भी वहां पर वो अपने लिए व्यवस्थित करेगा, ठीक है, हनी बी के लिए, मतलब वहां पर हनी बी के लिए वो एक हाइव भी व्यवस्थित करेगा। अगर क्वेश्चन पूछता है कि द थिंग्स द पोएट विच द पोएट वांट्स टू डू देयर, तो वहां पर आप फर्स्ट लिखोगे कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड बॉटल्स, 9 बीन रोज एंड अ हाइव फॉर द हनी बीज, ओके, एंड देन लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लैड, और पोएट वहां पर अकेले रहेगा उस बी लाउड ग्लैड में। बी लाउड मीन्स, बी लाउड आपका क्या हो जाएगा, प्लेस हैविंग द लाउड साउंड ऑफ हनी बीज, प्लेस हैविंग द लाउड साउंड ऑफ बीज बजिंग, ठीक है, जो साउंड है बीज बजिंग का, ठीक है, वो साउंड वो वहां पर जो है इंजॉय करेगा, अकेले रहेगा वो। ही वॉन्ट्स टू लिव देयर अलोन एंड ही वॉन्ट्स टू इंजॉय द साउंड ऑफ हनी बी, क्लियर, there he wants to enjoy. Glad means an open space, and he wants to enjoy in open space the sound of honey bee. Okay class, clear? I think this is clear to you. I will rise and go now. पोएट कहता है कि मैं अभी उठूंगा, अभी जाऊंगा इनस्फ्री में, वहां पर एक छोटा सा कैबिन बनाऊंगा जो कि जो है आपका मड से बना हुआ होगा और ट्विंग से, ब्रांचेस से, इन सब चीजों से बना हुआ होगा। 9 बीन रोज मेरे पास वहां पर होगी और एक हाइव होगा हनी बी का, क्लियर, और वहां पर वो जो है अकेले रहना चाहता है और उस आवाज को, जो आवाज वो सुन रहा है वहां पर, उस आवाज को वो सुनना चाहता है, इंजॉय करना चाहता है, क्लियर क्लास? Now the next stanza is, and I shall have some peace there, for peace comes dropping slow. अब पोएट कह रहा है कि वहां पर उसके पास कुछ शांति होगी, पीस होगी, ठीक है ना, और ये ड्रॉपिंग स्लो, धीरे धीरे गिरेगा, जो पीस है, जो शांति है, ठीक है, वो बिल्कुल स्लो वे में, स्लो तरीके से धीरे धीरे गिरेगी, ठीक है, द पीस विल ड्रॉप स्लोली, धीरे धीरे आएगी। कैसे आएगी? ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, जिस तरह से मॉर्निंग की शुरुआत होगी, एज द मॉर्निंग स्टार्ट्स, ओके, जैसे ही मॉर्निंग शुरू होगी, द पीस विल ड्रॉप, okay, the piece will drop to where the cricket sings, and the poet wants to enjoy the sound of cricket even, he wants to enjoy the sound of cricket even, okay, and he also says that he wants to enjoy the peace which starts with the morning, with the veil of the morning. Actually here in this way he compares the morning to a woman who is veiled, he compares it, okay, the morning with the woman who is veiled, एक औरत से कंपेयर कर रहा है जो कि कवर्ड है, ठीक है, और धीरे धीरे जैसे जैसे सुबह होती है, ठीक है, उसी तरीके से धीरे धीरे मॉर्निंग के साथ ही जो है ना पीस आना शुरू हो जाती है, शांति उसे मिलना शुरू हो जाती है, ओके, और फिर उसी के साथ ही वो वहां पर क्रिकेट के साउंड को भी इंजॉय करना चाहता है। जैसे सन उगता है, एज द सन राइजेस द मॉर्निंग ड्रॉप्स हर वेल टू darkness, as the sun rises the morning starts to drop the peace, okay, जैसे ही सन आपका जो है स्टार्ट, जैसे ही सन आपका राइज हो रहा है, ठीक है, मॉर्निंग स्टार्ट हो जाती है, विद द राइज ऑफ द सन द मॉर्निंग स्टार्ट्स, एंड देन he finds what, he finds that the peace also starts to drop on the poet. Actually he feels the peace, जैसे ही सुबह होती है वैसे ही वो पीस को, शांति को महसूस करने लगता है, शांति की जो है वो जिस चीज की कामना में, जिस चीज की इच्छा से वो यहाँ पर आया है, okay, for which desire he has come here, he wants to enjoy that, okay, that the desire of having peace, okay, और फिर इसके बाद वो क्रिकेट की सिंगिंग को भी इंजॉय करता है। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, और यहाँ पर जो मिडनाइट है, जो मध्य रात्रि है, वो भी ग्लिमर है, चमकदार है, शानदार है वो भी, और उसको वो जो है इंजॉय करना चाहता है। मिडनाइट जो है वो ग्लिमर है, ठीक है, वो भी चमकदार है। फिर इसके बाद एंड नून अ पर्पल ग्लो, जो सनलाइट है ना वो नून में, दोपहर के टाइम पर सनलाइट जो है वो एक पर्पल इफेक्ट देती है एटमॉस्फेयर को, एनवायरनमेंट को, वहां पर एक पर्पल इफेक्ट देती है। तो वही कह रहा है कि नून जो है वो एक पर्पल तरीके से ग्लो हो रहा है, ठीक है, पर्पल ग्लोइश लुक जो है वो एनवायरनमेंट को दे रहा है। तो कह रहा है नून इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल देयर, ओके, इट गिव्स अ पर्पल इफेक्ट। एक्चुअली every moment there, and he is feeling everything, that is why he has expressed in this poem very beautifully all the picture of the nature,
पिक्चर जो है, नेचर की जो पिक्चर है, उसने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसमें एक्सप्रेस किया है, वो हर मोमेंट को इसमें एक्सप्रेस किया है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसने जो है एक तरीके से नेचर को इस पोएम में प्रेजेंट किया है कि मिडनाइट है वो भी ग्लिमर है, चमकदार है तारों से, स्टार से, ठीक है, और जो नून है वो भी पर्पल ग्लो है ड्यू टू द सनलाइट इफेक्ट, पर्पल ग्लो। ओके, फिर कह रहे हैं एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग, और जो इवनिंग है वो जो है लिनेट विंग से चमकदार है। लिनेट इज अ काइंड ऑफ बर्ड एंड द इवनिंग इज फुल ऑफ लिनेट बर्ड्स, देयर आर लॉट्स ऑफ बर्ड्स, clear, there are lots of birds and that is also means interesting to enjoy. Okay class, here the poet says that the evening is full of linnet's wings. Linnet is a bird and poet wants to enjoy the evening also, which is full of linnet's wings. Clear class? Now we will start our last and next stanza, that is I will arise and go now for always, night and day. Here poet says that actually here poet has intense desire, here poet has a strong desire to move right now. He doesn't want to stay, he doesn't want to stay one any more moment, he doesn't want to stay now, he wants to go right now to Innisfree. He has a strong desire, he has intense desire, he doesn't want to stay a single moment there in city that is full of pollution, full of busy life, and that is full of hustle and bustle. He wants peace, he wants tranquility, that is why he wants to go where to Innisfree. Okay, his the place which reminds him his childhood memories, and he says that I hear lake water lapping with low sounds by the shore. Poet ये कह रहा है I hear lake water lapping with low sounds by the shore while I stand on the roadway और ऑन द पेवमेंट ग्रे। पोएट जो है वो सिटी में है, ठीक है, वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, पोएट जो है सिटी में है, रोडवे पे स्टैंड है, खड़ा हुआ है, ओके, आर ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, ग्रे पेवमेंट पे है, ठीक है, रोडवे पे है, वो वहां पर खड़ा हुआ है और उसके अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर है जाने की, और इसलिए वो जो है उस आवाज को महसूस कर सकता है। लेक वाटर लैपिंग, जो मतलब किनारा जो है, पानी का जो किनारा है वो जब टकरा रहा है, ठीक है, किनारे से टकरा रहा है, समुद्र के किनारे से जो वो टकराता है, तो जो आवाज होती है पानी की वो उसको महसूस कर सकता है, ठीक है। आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स, धीमी धीमी आवाज वो अपने हृदय की गहराइयों से, ठीक है, महसूस कर सकता है, सुन सकता है, जबकि वो कहाँ पर है, रोडवे पे है, ठीक है, पेवमेंट पे है, जो कि ग्रे है, पेवमेंट मतलब एक ऊंचा सा स्टैंड है, वहां पर खड़ा है, जो कि ग्रे है, ग्रे मतलब ग्रे, द वर्ड ग्रे शोज हियर पोल्यूशन। ओके, द सिटी लाइफ इज फुल ऑफ पोल्यूशन, फुल ऑफ नॉइज, full of hustle and bustle, and it is busy. The poet wants to escape, that is why he wants to go from here to Innisfree kind of place. Clear? I hear it in the deep heart score. The poet can feel it from the core of his heart. Okay, the poet can feel it with the deepness of his heart, and he is saying that is why that he wants to go to Innisfree right now. Clear class? Still if you have problem, then contact me and you have to write summary, central idea and NCERT question. NCERT questions I'll give you, you have to write summary and central idea. And if you have some problems and tough words, as I have explained, okay, if you have problem, then just contact to me any kind of problem in this program. Clear class? Okay, thank you.